The organic compounds containing carbon and hydrogen are Alkenes. called as hydrocarbons. यानी हाइड्रोकार्बन्स तीन प्रकार के होते हैं, alkanes and alkynes. You know this, right? 10th में पढ़ा. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, What sir. is the general formula of alkanes? General formula of alkane is CnH. CnH2 H2n General formula plus क्या 2. है? CnH2n. CnH2n Alkynes है general formula CnH2n minus 2. H2n minus 2. These are alkanes, alkynes and hydrocarbons जो आपने पढ़ा. For organic compounds may also contain, apart from carbon, hydrogen. They can also have oxygen. They can also have halogens like fluorine, bromine, iodine. They may also have sulfur, nitrogen. ये एलिमेंट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं. सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन रहा तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. But they may also contain other elements like oxygen, sulfur, fluorine, bromine, iodine, nitrogen, etc. Some more elements also. So different types of compounds. You'll find organic compound. Millions and millions and millions and millions of organic compounds in the nature. And again, among themselves, there are again different types. Like based on वो open chain molecules है, closed chain molecules है, वो सभी same atom के बने हुए हैं कि different atoms से बने हुए हैं. ऐसे हम organic compounds को classify कर सकते हैं depending on different nature of this molecules and the way they are formed. So today we will see the classification of organic compounds. Today's topic is classification of organic compounds. Topic start होगा भी. Topic is classification of organic compounds. That is the first topic. Topic is classification. कितने लोगों को आता है क्लासिफिकेशन पता है? पहले से ही आपको पता है? सर थोड़ा सा बताए ना तो. थोड़ा सा पता है. ओके, देखते हैं. Yes, sir. Science. ऑरेंज. They are broadly classified into two types. First, they are broadly classified into two types. Science लेने आता है. वो देखा है. क्या? Open chain, closed. Open chain compounds and closed chain compounds. पहला classification है organic compounds. There are two types: open chain and closed chain. Open chain compounds we can also call them as aliphatic. Aliphatic compounds, or we can also call them as acyclic compounds. ओपन चेन या एलिफेटिक या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी की. वैसे ही we can call this closed chain compounds also as we can call them as
ring chain compounds or cyclic compounds. ये पहला क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत भी और भी वन बाय वन, ओपन चेन, क्लोज चेन। Now again, we will take the examples of each of this category at the end of the whole classification, ठीक है? फिलहाल आप पूरा क्लासिफिकेशन को देख लेते, नोट कर लीजिए आप पूरा फ्लो डायग्राम। उसके बाद वन बाय वन हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स क्या है, मतलब कैसे पहचाने कि ओपन चेन है, क्लोज चेन, कैसे बच्चे डिफरेंट क्लासिफिकेशन में बैठते हैं। एट द एंड वी विल सी। फर्स्ट वी जस्ट go through this. Open chain compounds can again be classified in two types. जो ओपन चेन मॉलिक्यूल्स है उनको हम वापस दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। कैन क्लासिफाई देम एज व्हाट, हाउ कैन वी क्लासिफाई देम? एनीबॉडी नोस? Saturated and unsaturated. करेक्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आपके आते हैं आपके अल्केन्स, Alkanes. अनसैट में आप जनरली आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। They come into category unsaturated. तो ओपन चेन मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। This is the end of open chain molecule classification. Further classification नहीं करेंगे। फर्दर भी हम कर सकते हैं, इसके अंदर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन करेंगे। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन करके बोल सकते हैं, पर यहाँ तक आप closed chain molecules can be further classified as cyclic compounds. Homocyclic heterocyclic. So cyclic compounds या closed chain compounds can be further classified as homocyclic and heterocyclic compounds. And this homocyclic compounds can be further classified as alicyclic and aromatic. Alicyclic and aromatic. Even heterocyclic compounds can be further classified as same alicyclic and aromatic. इसका आगे जो क्लासिफिकेशन जो होमोसाइक्लिक के लिए मैं करूंगा वो सेम क्लासिफिकेशन हेटेरोसाइक्लिक के लिए भी है। हेटेरोसाइक्लिक के लिए सेम क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। They can also be classified as again alicyclic and aromatic. Are you noting down? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This aromatic compounds can further be classified as benzenoids and non-benzenoids. The same classification can be done over here also. Here also aromatic is there, you can classify them as
बेंजीनॉइड्स हैं। यहाँ समाप्त होता है क्लासिफिकेशन। Note it down. Now we'll see one by one. One by one समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दे दिया है और पूछा है कि भैया बताओ ये कौन सा क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, ये एरोमेटिक होमोसाइक्लिक है, क्या एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक है, कि एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक है, ये बेंजीनॉइड है कि नॉन बेंजीनॉइड है, कि ओपन चेन मॉलिक्यूल है क्लोज चेन मॉलिक्यूल, क्या है एग्जैक्ट, है ना। Note it down. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will see one by one, okay? तो हम एक कंपाउंड को देख के पहचानेंगे कैसा है, उस समझाता हूँ इसको मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पहला क्लासिफिकेशन के बारे में, ओपन चेन क्लोज चेन कैसे पहचाने। स्टेप बाय स्टेप जैसे ये स्टेप्स नीचे फ्लो चार्ट में दिया है वैसे ही हमें कंपाउंड को पहचानना है स्टेप बाय स्टेप। लेट्स से वो तो बहुत सिंपल है ना, ओपन चेन क्लोज चेन बहुत सिंपल है। क्लोज चेन मतलब क्या है, इट विल बी क्लोज्ड। ये क्लोज चेन है, रिंग टाइप रहेगा, है ना। दो टर्मिनल जो कार्बन है ओपन चेन में कैसा, ये ओपन इसको बोलते हैं ओपन चेन, दिस इज ओपन चेन मॉलिक्यूल, दिस इज द क्लोज चेन मॉलिक्यूल। ये ओपन चेन मॉलिक्यूल का दोनों जो एंड है इनको आपस में हम कनेक्ट कर दें तो ये क्लोज चेन बन जाएगा। जैसे गले में आपका चेन होगा, चेन पहनते होंगे आप, जो गले में चेन आपने पहना है वो अभी क्लोज्ड है, आपने हुक लगा दिया, अगर उस हुक को आप ओपन कर दो, जब खोलना होता है तो हुक निकालते हो ना, तो स्ट्रेट बन जाता है। ओपन करके हाथ में पकड़ो, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, ओपन चेन बोलेंगे। अगर वापस से हुक लगा तो क्लोज हो जाएगा, वापस से क्लोज चेन बोलेंगे। तो क्लोज चेन मतलब साइक्लिक, ऐसे रिंग होना चाहिए उसके साइक्लिक। ये ओपन, ये क्लोज चेन, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ये ओपन चेन, ये एलिफेटिक। अच्छा अब मैं बनाऊंगा, आप बताइए ओपन है क्लोज्ड है, पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो भी स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा आप बताएंगे वो ओपन चेन मॉलिक्यूल है कि क्लोज चेन है, पहला क्लास बहुत सिंपल है। ओपन है क्लोज है, Open. 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 Open chain. Open. Open. ये ओपन है क्लोज है, Closed. Closed. क्लोज चेन, Closed. 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 ये Open. Open. ओपन चेन मॉलिक्यूल स्ट्रेट है, Yes. Open. Open. Closed. 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 जैसे रिंग बन गया यहाँ पे, है ना, जैसा रिंग बन गया क्लोज हो गया, क्लोज चेन। ठीक है, ओपन क्लोज सिंपल है, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ओपन चेन में दो टाइप मैंने बोला, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, राइट। तो सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं अल्केन्स बेसिकली, जो सैचुरेटेड होंगे उनके अंदर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड्स। जब सभी कार्बन के बीच में, इफ ऑल द कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड एक भी ना हो, एक भी पाई बॉन्ड ना हो, उनको बोलेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। There should be not a single pi bond between the carbon atom. If there is even one pi bond,
एक भी पाई बॉन्ड रहा, एक भी पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ गया पूरे चेन के अंदर, तो फिर वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, कैसे मान लीजिए, बताओ ये सैट है कि अनसैट है? Saturated. 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 ये Unsaturated. 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 है ना, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड Unsaturated. आपको मिल गया, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो आप बोलेंगे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और डबल बॉन्ड आया उसके मतलब ये अल्कीन। अगर डबल बॉन्ड आया तो इसको बोलेंगे अल्कीन, इट इज एन अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये अल्काइन, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन। If they're all single bonds between the carbon atom, it is alkane. Even at least one double bond वहां present है तो alkene. At least एक भी triple bond वहां present है तो फिर वो alkyne कहलाएगा। Is it clear the first classification of open chain molecules? Now we'll go to closed chain. Yes, sir. Yes, Closed chain दो sir. type मैंने बोला, homocyclic and heterocyclic. Closed chain classification क्या है? Homocyclic and heterocyclic. First classification is homocyclic and heterocyclic. Let's see. होमोसाइक्लिक मतलब जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो भी एटम रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऑल दोस एटम्स मस्ट बी सेम। जो रिंग बना रहे हैं, जो रिंग को जुड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं, जो रिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूँ, सभी ठीक है, बेंजीन रिंग, ये हमारा बेंजीन रिंग, राइट, ये बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। तो अभी यहाँ पे आप जानते हो ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह, यहाँ पे अगर ये लाइंस का मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कार्बन है, दिस आर कार्बन बॉन्ड्स। जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे कार्बन होते हैं। जब मैं ऐसे बनाता हूँ इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन। तो दिस मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं, जनरली जैसा बनाते हैं, दिस कार्बन कार्बन कार्बन, दिस 4 कार्बन का चेन है, और कार्बन कुछ नहीं, उसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यहाँ कार्बन का कुल मिला के एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, है ना, 4 में से एक बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है इस कार्बन का, बाकी 3 बॉन्ड नहीं है, मतलब वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड है, उसको मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। तो दिस इज नथिंग बट ब्यूटेन। ये जो मैंने बनाया है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, और ये नॉर्मल फॉर्मूला स्ट्रक्चर जैसे जब बनाते हैं। तो ऐसा ये बेंजीन रिंग जो है, अब यहाँ पे इसको मैं अगर कार्बन से ऐड करती हूँ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, this is a carbon over here, this carbon, this is carbon, this is carbon, this is carbon, this is carbon. ये 6 membered ring है ना, because 6 कार्बन मिलके रिंग बना रहे हैं, this can be called as 6 membered ring. This is called as 6 membered ring because 6 carbons involved. Carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6 carbons involved over here. This is called as 6 membered ring. तभी जो 6 मेंबर्स जो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये 6 के 6 सेम है कि डिफरेंट है? They are all made up of same atom. They are all made of Yes, same sir. atom carbon. ये 6 के 6 कार्बन है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक है, पर कैसा साइक्लिक है? होमोसाइक्लिक। होमो मींस ऑल सेम, सब सेम होगा तो होमो होगा। साइकिल बना रहे हैं, पर साइकिल बना रहे सबके सब मेंबर्स कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो उनको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now say Right. Heterocyclic. ये है pyridine। Heterocyclic. हाँ, वेरी गुड। ये हेटेरोसाइक्लिक क्यों? ये कितने फर्स्ट होता है, कितने मेंबर्ड रिंग है? इस रिंग को बनाने के लिए कितने मेंबर्स कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6 मेंबर्स।
Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thus, is a six-membered ring. But out of six members, five are carbons and one is नाइट्रोजन. यहाँ पे कोई कार्बन, जितने भी एंड पॉइंट है सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ कार्बन है. 5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, क्योंकि ये दो डिफरेंट प्रकार के एटम से बन रहा है. If it is more than one type of atom is involved in the ring, then it is heterocyclic. Because दो different type के atoms बन रहे हैं, इसको बोलेंगे हम heterocyclic. हेटेरोसाइक्लिक. किसी कोई शंका? No, sir. Yes, sir. I understand. सर होमोसाइक्लिक वाला फिर से बताइए ना. होमोसाइक्लिक मतलब फर्स्ट हमको देखना है कि रिंग कौन कौन बना है. जो रिंग है ना साइकिल, और रिंग जो है Yes, sir. कौन से मेंबर्स बना रहे हैं. अगर आपको दिखता है कि सभी मेंबर सेम है, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग में सबके सब कार्बन है ना, जितने भी लोग रिंग बना रहे हैं सभी के सभी कार्बन. अगर सभी सेम एटम से बना है, एक ही प्रकार के एटम से रिंग बना है, only one type of atom is involved in the formation of the ring. If only one type of atom is involved in the formation of the ring, then such kind of ring compounds are called as homocyclic compounds. And if more than one type of atoms are involved in the formation of the ring, they are called as heterocyclic compounds. Is that clear? Clear? Yes, sir. Yeah. Thank you. Yes, sir. We'll take some more examples, so you'll understand better. बताओ ये होमो है कि हेटेरो है? Heterocyclic. बताओ हेटेरो क्यों है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन Because of the presence of oxygen. यहाँ कार्बन भी और Oxygen. ऑक्सीजन भी आ गए है ना, दो Oxygen. प्रकार के एटम आ गए, दो प्रकार के हेटेरो बन गए. ठीक है, वेरी गुड. अब जिसको मैं पूछूंगा वही बताएगा, आप कोई मत बताइए. दिस क्वेश्चन गोज टू 69, 53, 38 DC. Who is that? 69, 53, 38 DC. ऐसा ही नाम यहाँ पे आ रहा है, वो नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं. अनुज चंगेड़िया. सर मैं सार्थक हूँ. सार्थक तो नाम लिखो ना यार, सार्थक करके क्या सर, 68 वो भूल कोड गया, लैंग्वेज है क्या? भूल गए. नहीं अच्छा सर, ठीक भूल है. गए. बताओ ये होमो है कि हेटेरो? बताओ. होमोसाइक्लिक है सर. ये होमोसाइक्लिक है. किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? सार्थक बोल रहा है कि ये होमोसाइक्लिक. एनीबॉडी हैव एनी ऑब्जेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the objection? It is heterocyclic. NH2. Yes, sir. It is hetero. NH2 है सर. हेटेरो है सर ये. Hetero. ये होमोसाइक्लिक. साइक्लिक है सर. देखिए बताता हूँ, उसलिए एग्जांपल लिया मैंने. वापस सुनिए मैंने क्या बोला. मैंने बोला जो रिंग बना रहे हैं, रिंग के अंदर के मेंबर्स. यहाँ रिंग कौन बना रहा है? रिंग कौन से? ये एटम बना रहा है. ये 3 मेंबर. उसे पहले वो पहचानना है कितने मेंबर रिंग है. 1, 2, 3. ये 3 लोग रिंग बना रहे हैं ना. रिंग तो 3 लोगों ने बनाया था ऐसे, बराबर. ये 3 लोग रिंग बनाया था, और रिंग को जुड़ा हुआ है NH2. उसको जुड़ा हुआ उसको कोई मतलब नहीं है अपने को. और रिंग पे क्या अटैच्ड है वो डिसाइड नहीं करेगा कि वो होमो की हेटेरो है. जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं वो तीनों डिसाइड करेंगे. जो रिंग फॉर्म कर रहे हैं किससे बने हैं? वो सभी कार्बन से बने हैं. दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन. ऑल 3 आर कार्बन. होमोसाइक्लिक. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Few more examples. Homocyclic. 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 Homocyclic, अरे sir. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है.
लेकिन चेन कार्बन थी सर। सर होमोसाइक्लिक। Homocyclic. होमोसाइक्लिक सर, होमोसाइक्लिक। Homocyclic. तुमको समझ में चेन नहीं आ कार्बन रहा है थी। यार। मानसी माने देखो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो समझाओ इन लोगों को। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर, फिर भी होमोसाइक्लिक बोल रहे हैं लोग। सर समझाओ तो इन लेकिन लोगों को। हाँ सर चेन वाटर के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे पता ही नहीं था बात। अच्छा, फिर बराबर है आप लोग, है ना। रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व है। इट इज a 6 membered रिंग। ऑल ऑफ योर क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट। आपको समझ में आ गया बात? समझ में आ गया है ना? तो आपको सिर्फ रिंग देखना है, रिंग को क्या अटैच उससे कोई मतलब नहीं। तो रिंग फॉर्मेशन कितने मेंबर्ड रिंग है? इट इज हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग? मेंबर्ड, 6 Six membered सिक्स ring. मेंबर्ड रिंग। All the 6 members are carbons. उसलिए क्या है, होमोसाइक्लिक है। दिस इज ए होमोसाइक्लिक रिंग। हेट्रो Heterocyclic. 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 ये हेटेरोसाइक्लिक है, बिल्कुल सही जवाब है। हेटेरोसाइक्लिक है सर। बताइए, इट इज हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग? कितने मेंबर्स रिंग है? 4. 5 numbered. 5. 5. Numbered 1 2 3 4 5. It is 5 membered ring. 5 members कौन कौन है? 4 4 कार्बन carbon and 1 4 oxygen. carbon and 1 oxygen. 4 carbons and 1 oxygen. Correct. Absolutely right. तो आपको ये समझ में आ गया जो पहला क्लासिफिकेशन है साइक्लिक का। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। नाउ आई थिंक यू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कंपाउंड आपको दिया है तो पहचान लोगे आप कि वो होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट आपको पहचानना है कि एलिफेटिक क्लोज चेन है। क्लोज चेन है तो दो पॉसिबिलिटी है, होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। वो पहचानते भी आपको आ गया। अब अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है, अगर वो होमोसाइक्लिक है तो वो एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है? अगर वो हेटेरोसाइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक है ना। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पड़ाव में जाने से पहले समय खत्म होने की संभावना है जूम की, कुछ सेकंड से बंद होने वाला है। तो रीस्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि अब ये बंद पड़ेगा तो लिंक टूट जाएगा। टिल नाउ एनी डाउट? No, No, sir. सर वो No, एलिफेटिक sir. मतलब क्या होता No, sir. No, sir. somebody is asking something. सर एलिफेटिक? हाँ एलिफेटिक बताओ ना।